नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस खबरें विस्तार से। इन्वेस्ट एमपी जीआईएस 2025 में मध्य प्रदेश अनंत संभावनाओं की भूमि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर हो चुका था। आपके आने के बाद आपके नेतृत्व में पन्ना की दूसरी लाइन लग रही है जो 3000 करोड़ का और निवेश हो रहा है, जिसमें पन्ना विल बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट सीमेंट फैक्ट्रीज ऑफ मध्य प्रदेश। एंड इसके अलावा हमने 2 कोल ब्लॉक भी लिए हैं मुख्यमंत्री जी, शाहडोल एंड सिंगरौली में, जिसमें 1500 करोड़ का और निवेश होगा, टेकिंग जेके सीमेंट्स टोटल इन्वेस्टमेंट टू मध्य प्रदेश ओवर 6,000-7,000 करोड़, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू ओवर 10,000 पीपल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्टली। मुख्यमंत्री जी, मैं आपको यही कहूंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरह से आप अलग अलग इंडस्ट्री पॉलिसी ला रहे हैं, सेक्टर फोकस कर रहे हैं, और यहाँ बैठे सभी लोग को मैं इंकरेज करूंगा कि वो आए, अपना निवेश मध्य प्रदेश में लाएं, बिकॉज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रति काफी कार्य स्टेट पे हुआ है। एंड गिवन द फोकस ऑफ द गवर्नमेंट, आई एम श्योर you will be very happy investing in the state of Madhya Pradesh. Thank you very much. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सिंघानिया जी, सीआईआई के प्रतिनिधि के रूप में और साथ साथ एक प्रमुख उद्योगपति स्वयं होने के रूप में अपने अनुभव हमारे साथ साझा करने का। और देवी सज्जनों, जैसे कि आप सभी जानते हैं और कहा भी गया कि मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का हृदय है। ये अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए, अपने ऐतिहासिक धरोहरों के लिए, अपने किलों, अपने महलों के लिए जाना जाता है। इसके साथ साथ अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। सिंघानिया जी ने बेड़ा घाट के बारे में बताया, टाइगर रिजर्व्स के लिए जाना जाता है। पर इसके साथ साथ देवी सज्जनों, मध्य प्रदेश आज जो है अपने औद्योगिक विकास के लिए भी जाना जाता है। नर्मदा पर अपने फ्लोटिंग सोलर प्लांट के लिए भी जाना जाता है, एज एन आईटी हब एंड आईटीएस हब, एज एन ऑटो हब, इसके साथ साथ फार्मा हब भी जाना जाता है। So it is actually a very good mix of the old and the new, the two seamlessly merging into each other. So we now present to you, we bring you a curtain raiser movie towards MPGIS, जिसके माध्यम से MPGIS में क्या क्या होने जा रहा है उसके बारे में तो हम आपको जानकारी देंगे। We also share with you the advantage Madhya Pradesh, and that is going to be giving you a very much clarity about why you should be investing in Madhya Pradesh. तो आइए देखते हैं ये कर्टन रेजर मूवी। MedTech companies in one land and medicines being exported to 160 countries. If you witness a thriving agricultural ecosystem that produces 27% of India's organic crops and as many as 11 agroclimatic zones, which is the highest in the nation. If you're exploring a vast industrial land bank of more than 1 lakh acres, if you're not facing land and labor issues at all, if you're finding ample raw material for cotton, silk and man-made fiber, if you meet talent from India's first global skills park, IIT, IIM, NID, NIFT, NANET and many prestigious institutions near you, if you have access to multiple airstrips and 6 world-class airports for connectivity and doing business with ease, if you see a defense hub emerging, if natural resources are in abundance and readily available at your factory's doorstep, if you're awed by World Heritage sites, wildlife around you, and blessed by spiritual, divine destinations symbolizing India's timeless traditions. If you're looking to expand your business in an ecosystem that offers unparalleled ease and comprehensive support from the government, if you experience dynamic leadership
and investor-centric policies, creating an ecosystem for the next industrial revolution. When you find infinite possibilities align in one place, you know you are in Madhya Pradesh, the heart of India. Welcome to the 8th Global Investor Summit 2025, Bhopal, Madhya Pradesh, where global visionaries, policymakers and industry leaders will converge for 2 power-packed days. Engage directly with Chief Minister Dr. Mohan Yadav, who is committed to realizing the Honorable Prime Minister Narendra Modi's vision of a developed nation. The summit transcends boundaries with groundbreaking collaborations and strategic partnerships that drive global investment and innovation. From celebrating our heritage to building a sustainable tomorrow. आप आइए और आपको लगे पॉलिसी से आउट ऑफ जो भी जाना हो तो सरकार तैयार है आपकी सारी मदद करने के। If you're looking to discover and embrace infinite possibilities of growth, we invite you to join us at the Invest Madhya Pradesh Global Investor Summit 2025 in Bhopal on the 24th and 25th February. तो दिव्य सज्जनों, मध्य प्रदेश में वो सब कुछ है जो न केवल आपके निवेश को सुरक्षित रखेगा पर और भी बढ़ाएगा, लाभदायक होगा, फायदेमंद होगा। एंड दिस कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ विन-विन कोलैबोरेशन। तो अब एमपी जीआईएस 2025 की तरफ हमारी सरकार की क्या तैयारी है, इसमें आप सभी के लिए क्या कुछ नया है, क्या महत्वपूर्ण है, एमपी जीआईएस 2025 में क्या अपेक्षित है, इस संदर्भ में मैं अब आमंत्रित करती हूँ श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी को, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी और इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और एमएसएमई, एक विस्तृत जानकारी देने के लिए। आई रिक्वेस्ट हिम फॉर हिज प्रेजेंटेशन। राष्ट्रीय राजधानी में आप सभी का हृदय से स्वागत। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मुख्य सचिव महोदय, श्री एम.के. सिंघानिया जी, सीईओ जेके सीमेंट, श्री विनीत मित्तल जी, चेयरमैन अवाडा ग्रुप, श्री आशीष वैश्य जी, चेयरमैन सीआईआई मध्य प्रदेश, यहाँ बैठे हुए हमारे सम्मानीय इन्वेस्टर्स, आपके समक्ष केवल एक ही बात कहना चाहता हूं। विकसित भारत का संकल्प संपूर्ण देश का, माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और उसी के साथ कदम से कदम मिलाते हुए विकसित मध्य प्रदेश का संकल्प, संपूर्ण मध्य प्रदेश के निवासियों का सहयोग, आपका मार्गदर्शन माननीय मुख्यमंत्री जी का। विश्व की अगर सबसे तेज बढ़ती हुई अगर इकॉनमी, इफ इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी इन द वर्ल्ड, तो मैं कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट इकॉनमीज इन इंडिया। तो विश्व की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और मध्य प्रदेश देश की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था। तो इस विकसित भारत और इस विकसित मध्य प्रदेश के एक जुड़े हुए संकल्प को साधने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने अपने प्रयासों से, अपने प्रयत्नों से पूरे वर्ष भर, और आपको यह जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि इस विभाग के उद्योग विभाग के माननीय मंत्री जी का प्रभार भी उन्हीं के पास है। तो नॉट ओनली दैट ही इज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, बट ही इज Minister of Industries Department. So this is the kind of priority he gives to industry. नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस खबरें विस्तार से।
इन्वेस्ट एमपी जीआईएस 2025 में मध्य प्रदेश अनंत संभावना की भूमि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देखी लाइव तस्वीर। जापान की यात्रा पे था और जापान में वो सबसे बड़े, क्या नाम था, यूनिक्लो वाले, नहीं यूनिक्लो वाले, वो हमारे बीच में आए और आकर के, मैं जब, माफ करना, मैं अपने समय से 40 मिनट लेट वहां पहुंचा। उन्होंने 40 मिनट इंतजार किया और जापान के सबसे बड़े धनी आदमी और जिनका सबसे बड़ा रेडीमेड गारमेंट्स का काम, और वो अच्छा होमवर्क करके आए। और वो आए तो आए, उनने एक राय और दी कि मेरे साथ एक बहुत बड़ा उद्योगपति वो भी आना चाहेगा और आपके यहाँ कपास का जो उत्पादन है, वो कपास की बहुत बड़ी संभावना है। धागे से लेकर कपड़ा तक और कपड़े से लेकर रेडीमेड गारमेंट्स तक का निवेश का बड़ा संभावना का राज्य अगर कोई है, मध्य प्रदेश है। और उसमें से उनने दूसरी चीज एक और जोड़ दी कि वो मेरे साथ जो आ रहा है वो इसमें भी काम करते, वो केमिकल इंडस्ट्री का भी काम करते, दूसरे भी काम करते हैं। तो हमारे बेचारे अधिकारी तो अच्छी बात रखते हैं, वो व्यापारी तो है नहीं कि बात कैसे करना, क्या सोचना, कैसे सोचना। तो उनकी बात पकड़ के उन्होंने कहा नहीं, हम इसमें तो बहुत अच्छा करेंगे, केमिकल में हमारे अच्छी बहुत बड़ी गुंजाइश है। उन्होंने कहा एक मिनट जरा सुनो, तुम केमिकल की बात निकाल भी मत देने, तो वो छोटे में से निपट जाएंगे, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। तुमको वही की बात बताना, बड़ी वाली, क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए बड़ी जो संभावना, केवल उस पर चलो। तो ये जो वास्तविकता है कि जो अपने यहाँ बड़ी संभावना वाला अगर राज्य देखें, वास्तव में ये जो सारी बातें हमारे यहाँ एनर्जी की बात कही, सभी प्रकार की एनर्जी के लिए, सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए, और ये जो आपने अच्छा, धन्यवाद मेरे अधिकारियों का भी, कि इनके लिए भी बोलते बोलते इनके भी भाषण देना, ये भी अच्छा सीख गए, मुझे भी मजा। लेकिन भाव समझ में आता है, उसमें भाषण नहीं है। हमारे द्वारा करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजाने से जो कहा गया वो ऐसे ही नहीं कहा गया है। तो हम तो सब पढ़े लिखे समझदार लोगों की श्रेणी में आते हैं। हमारे मन के भाव है कि अगर मैंने सारे मंत्रिमंडल के माननीय 7 मंत्रियों को अपने अपने विभाग बांटे हैं और मैंने कहा कि मैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट अपने पास रखता हूं, तो आप बताइए कोई इंजन के बगैर ट्रेन चली है क्या आज तक? इंजन चलेगा तो ट्रेन चलेगी। इंजन को अपनी डब्बों को खींचने के लिए कई गुना ज्यादा आग उसके अपने दिल में जलाना पड़ती है, तब वो अपने इंजन ट्रेन खींच पाता है। तो मैं स्वाभाविक रूप से अपने पास कुछ मंत्रालय रखता, तो उसके लिए अगर मेरे को लगातार इन्वेस्टमेंट सबमिट करना पड़ेगी तो करना पड़ेगी कि नहीं करना पड़ेगी? उससे कैसे पीछे रह सकता, उस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये बात भी सही कि बार बार मिलने से, बार बार बात करने से, सब प्रकार के संवाद करने से, विषय लाने से, एक बार बात नहीं आई दूसरी बार आ जाएगी, दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार आ जाएगी। जो सब मिलकर के परस्पर संवाद होकर के सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ने के संकल्प तो पुष्ट होते ही हैं, वो तो मजबूत होते ही हैं, उन व्यवस्थाओं का सुधार होता ही है। और वही कारण है कि लगातार जैसे छोटे छोटे स्थान पर, और हमारा राज्य तो इतना बड़ा है कि राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य अगर कोई है तो मध्य प्रदेश। इतना बड़ा भौगोलिक एरिया है और इतने बड़े भौगोलिक एरिया के बावजूद भी हमारे पास जो अपार संभावना सब सेक्टर की, कोई सेक्टर बाकी नहीं। बात इतनी प्रकार की है कि नदियों का जल की बात भी अगर करें तो नदियों के अंदर आप नर्मदा जी की बातें आपने बताई है। नर्मदा जी की पानी का वेग हमारा, आप कल्पना करोगे कोई ग्लेशियर नहीं है ऊपर, कोई बर्फ का पहाड़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन वनों की अपने अंदर की जल राशियां इतनी आती है कि पूरे मध्य प्रदेश को, पूरे गुजरात को, राजस्थान तक को, सबको सरसब्ज कर रही। अकेली एक नदी, और अकेली एक नदी नर्मदा जी नहीं, ऐसी हर नदी आप बड़े बड़े कोई से भी राज्य उठा के देख लो, अगर जमुना जी और गंगा जी का प्रभाव आज की दिशा में हमको दिखाई देता है बिहार के पहले तो चंबल नदी अगर जमुना जी में नहीं मिले हमारे पास आगरा के पास से, तो उतनी धारा से वे जमुना जी का आगे गंगा जी के रूप में नहीं बनेगा, और फिर वो बिहार तक आते आते थक जाती है, तो फिर सोनभद्र मध्य प्रदेश से निकली नदी बिहार में फिर वापस उसके प्रभाव को बढ़ा कर देती है। ये मध्य प्रदेश की जलराशि है। और अकेले ये नहीं, ताप्ती से हमारा महाराष्ट्र लेके गुजरात तक का सारा नदियों का क्षेत्र, सब तरफ से तो पानी है, सड़कें है, 5,500 किलोमीटर का राजमार्ग का अगर नेटवर्क है तो मध्य प्रदेश के पास कोई राज्य इतना बड़ा नेटवर्क लेके नहीं, जहां NH हमारे 5,500 किलोमीटर के, 550 ट्रेन हमारे यहाँ चल रही है, 6 एयरपोर्ट हमारे यहाँ चल रहे हैं, और बाकी पाइपलाइन में बहुत सारे अलग अलग है। सभी प्रकार के सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए, टूरिज्म में आओ, टूरिज्म में भी किसी प्रकार के भी है, और क्या क्या इंसेंटिव देते हैं।
रेडीमेड गारमेंट्स में तो 200% में तो मेरा दिमाग ही काम नहीं करता, जोड़ बाकी करते करते कि 200% का इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टर को अगर इंसेंटिव दे रहे हो तो वाकई अब बचा क्या है। तो ये आपने सही कहा कि 50,000 करोड़ लगवाए, वो साल 2 साल में 25,000 करोड़ वापस देने की गारंटी दिला रहे हो, गलत थोड़ी कह रहे हो आप। क्योंकि ये तो हमारे लिए केवल सेक्टर को समझ करके डालने की जरूरत और निकालने की जरूरत, और मैं मान के चलता हूं गलत नहीं है। हम अल्टीमेटली कुल मिलाकर के हमारे सबके माध्यम से 21वीं शताब्दी भारत की होगी। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तीसरी आर्थिक अगर शक्ति बनाना है तो इस प्रकार के प्रयोग करने की जरूरत भी है और इस प्रकार के आमंत्रण की जरूरत भी है। और ऐसा माना जाता है कि अगर हृदय मजबूत है तो शरीर मजबूत है, हार्ट अगर है तो हार्ट की भूमिका में भी तो आना पड़ेगा। सारे कचरे वाले कार्बन डाइऑक्साइड वाले खून को निकालते हुए ऑक्सीजन युक्त से ही शरीर चलता है। ये हमारा जो परमात्मा की दया से जूलॉजिकल सिस्टम है, ये अच्छा चलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो आज की समिट हमारी हुई है और आप यहाँ के माध्यम से मैं आप सबको निमंत्रण दे रहा हूं, आइए हम सब मिलकर के भोपाल की 24 और 25 तारीख की तारीख को अमर करें। और जो एक बात बताइए वो भी और मजे की बात है, वहां लेक भी है, पहाड़ भी है, बहुत साफ सुंदर राजधानी भी है, लोग भी बहुत भले हैं और इतना अच्छा फॉरेस्ट का एरिया है। अभी हमने उनको रातापानी अभयारण्य की घोषणा कर दी। कई सड़कों पे दिन में आप घूमोगे, रात में टाइगर भी घूमते ही हमारे भोपाल की विशेषता भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। देवी सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी के संदेश से आप सभी ने ये महसूस किया होगा कि ये सरकार काम लगातार और फैसले असरदार करने में विश्वास रखती है और आप सभी यकीनन प्रोत्साहित हुए होंगे निवेश करने की तरफ और भोपाल आने की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद।